Hello children, let's study the first chapter of history, historiography, the development in the West. So, historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. What does this mean? This means that we study history to know chronologically, means in order, which year what happened, and that after that next year what happened, like that. The chronology of the events of the past, and it's a continuous process because it goes on and on. Some of the other event is going on happening. That's why. In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method of experiments and observations is used to verify the available knowledge. So when we study science, what we do is we do some experiments and we do some laboratory methods to find out whether whatever we are saying is true or not. And then what happens? फिर क्या होता है, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो फैक्ट वो लॉज बन जाते हैं हमेशा के लिए, और वो फैक्ट्स हमारे मतलब उस पर प्रूव हो जाते हैं कि ये ऐसा ही है. This method allows formulating laws, but that remains true irrespective of time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. तो क्या होता है कि साइंस वाले जो लॉज होते हैं उनको हम प्रूव कर पाते हैं, बट हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इवेंट को हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते. हम पास्ट में जाके देख नहीं सकते कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था. करेक्ट. सो इन द हिस्टोरिकल रिसर्च it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observations. This is so because we are not present in the historical time. हम historical time में present तो नहीं है और हम पीछे जाके देख भी नहीं सकते हैं. And the space and the historical events cannot be recreated. वो event तो अब फिर से हमारे लिए होगा नहीं ताकि हम study कर सकें. Also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. तो हिस्ट्री में हम ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं जो हमेशा सच होगा, irrespective of time and space. To begin, we need an expert who knows the language and the script of the historical document in order to read and understand the meaning. तो कैसा होता है कि हमको कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है तो हमको कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसको वो लैंग्वेज आती हो, वो स्क्रिप्ट उनको पढ़ना आता हो, वो चीज़ में वो एक्सपर्ट हो ताकि वो देख सकें कि सब कुछ सही है कि नहीं. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date, and the type of paper, stamp of the authority, etc. तो जो experts होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर को और पेपर पे किस तरह की लिखावट है वो सब ध्यान से देखकर, ऑब्जर्व करके, स्टडी करके वो बता सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने सच हैं. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of the relevant historical references. तो क्या होता है कि जब ये कोई एक पर्सन पूरा चेक कर लेता है, एक्सपर्ट पूरा चेक कर लेता है कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसके बाद एक हिस्टोरियन होते हैं, वो लोग पूरा हिस्ट्री के रेफरेंस से पूरा चेक करते हैं कि वो सब सच है कि नहीं या सही है कि नहीं. Methods of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, the study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistics, numismatic, the study of coins, and genealogy means the study of lineage, etc. So these are the different methods by which we study the documents whether they are true or not. The tradition of historiography. तो हिस्टोग्राफी का क्या ट्रेडिशन था, कहाँ से स्टार्ट हुआ? We may have learnt about the historical research method. हमने historical research method के बारे में पढ़ा है. Critically examining the historical sources and writing the historical narrative. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. The writing of the critical historical narrative is known as historiography. मतलब जो भी historical narrative लिखे जाते हैं उसको हम historiography बोलते हैं.
अ स्कॉलर हु राइट्स द नरेटिव इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन। जो भी स्कॉलर होते हैं जो वो उस नरेटिव को लिखते हैं उनको हम हिस्टोरियन बोलते हैं। हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। तो अब जब भी कोई हिस्टोरियन नरेटिव लिख रहा है, मतलब कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में लिख रहा है कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो कितनी डिटेल में लिखेंगे, या वो हर एक बारीक डिटेल के साथ नहीं लिख सकते हैं, या हर एक इंसिडेंट वो लोग डिटेल में नहीं लिख सकते हैं। ऊपर से ऐसा भी होता है कि उनके दिमाग में कुछ कंसेप्ट होता है कि वो किस एंगल से चीज़ को देख रहे हैं, उसी के हिसाब से वो लिखते हैं। ठीक है। सो द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him, कि वो क्या concept से चीज को देख रहा है। His style of writing is determined by the conceptual framework। तो उनका जो स्टाइल है वो उनके कंसेप्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कैसा लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे। So the tradition of writing historical narrative that his historiography was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time and were not eager to know about it। मतलब जो बहुत ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा था कि हिस्टोग्राफी लिखना किसी को नहीं आता था या वो लोग नहीं लिखते थे, बट वो लिखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते थे या वो लोग ईगर नहीं थे। वो लोग भी अपनी स्टोरीज वो चाहते थे कि आने वाली जनरेशन उनको जाने कि क्या हुआ था उनके टाइम पर। सो एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ, वैलर of the ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world used the means like cave paintings, telling stories, storytelling, singing songs, ballads, etc. for this purpose। तो इन्होंने क्या किया था कि अगर उनको लिखना नहीं आता था तो वो केव पे पेंटिंग्स करते थे, उन्होंने कुछ स्टोरीज बताए थे, कुछ ऐसे गाने बनाए थे जिनसे हमको उनके बारे में पता चल सके। These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography। तो ये जो सारे sources हैं, जो stories हैं, paintings हैं, songs हैं, ये क्या है, हमारे sources हैं historiography के। Modern historiography, 4 main characteristics of modern historiography। तो modern historiography के 4 main characteristics हैं। So first characteristic is its method is based on scientific principles। It begins with the formation of relevant questions। तो इसका बेसिस जो होता है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, और इसका फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है, रेलेवेंट क्वेश्चंस से। हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उससे शुरुआत होती है हिस्टोग्राफी लिखने की। सेकेंड, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period। मतलब हमारे किसी एंशियंट पुराने सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के ह्यूमंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। तो हिस्ट्री में कभी भी भगवान और इंसानों के बीच के कोई कर्म नहीं आते हैं, हमेशा इंसानों वाली चीज़ें ही लिखी होती हैं हिस्ट्री में। आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस। मतलब ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो क्या होता है कि पास्ट की ह्यूमन डीड्स का एक ग्राफ होता है और पूरा एक जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं उस हिस्ट्री में। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी with the above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writings। तो अभी ऐसा बोला जाता है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है इसके रूट्स कहाँ पे है, एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में। मतलब ग्रीक में जिस तरीके से लोग लिखते थे वैसा ही हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। हेरोडोटियस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE used it for the first for his book entitled Histories। सो जो हेरोडोटस है उन्होंने अपनी पहली बुक के लिए ये सिस्टम हिस्टोग्राफी का यूज़ किया था अपने बुक के लिए, जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी।
तो ये यूरोप और हिस्टोग्राफी में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कहाँ से आया? सो टिल द 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of physiology and science. तो क्या हुआ, 18th century तक यूरोप में बहुत प्रोग्रेस आ गया था फिलोसफी और साइंस में. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. तो उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे वो क्या सोशल और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते थे, बट साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके देखना चाहते थे कि वो कितना सच है. ठीक है. नाउ द फिलोसफिकल डिस्कशंस फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी. तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब सच है, झूठ है, सही है, गलत है, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं. तो उस तरीके से वो हर चीज़ को सोचने और देखने लगे थे. वो प्रूफ करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि जो भी लिखा है, जो भी बोल रहे हैं, सब कुछ सही है या नहीं. So prior to the 18th century, all European universities were interested only in the physiological discourses revolving around the divine phenomena. तो जो भी है 18th century से पहले जो भी लोग थे उनको सिर्फ डिवाइन फिनोमिना मतलब भगवान ने क्या किया, भगवान मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट था. बट 18th century के बाद सब कुछ चेंज हो गया. However, gradually this scenario began to change. Then in 1737 CE, Göttingen University was found in Germany. तो एक यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी जर्मनी में 1737 में. दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. तो इस यूनिवर्सिटी में पहली बार हिस्ट्री का अपना एक अलग डिपार्टमेंट था. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज. तो क्या हुआ कि बाद में दूसरे जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पर भी हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुई. अब हम देखेंगे कि कौन कौन स्कॉलर्स थे, नोटेबल स्कॉलर्स, जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे हिस्टोग्राफी में. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी. लेट्स हैव अ लुक इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स. मतलब कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज रेने डिस्कार्ड्स. और इनका एज कहाँ से कहाँ तक था? 1596 से 1650 तक. मतलब उनका ये साल में उनका बर्थ हुआ है और ये साल में उनका डेथ हुआ है. ओके. रेने डिस्कार्ड्स वाज द फोरमोस्ट अमंग द स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम. तो ये पहले इंसान थे जो हिस्ट्री को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते थे, देखना, एग्जामिन करके देखना चाहते थे कि सब कुछ सही है कि नहीं. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method. तो उनकी एक बुक है Discourse on the Method. उसमें उन्होंने दिए हैं सारे रूल्स कि किस तरीके से हम एग्जामिन करते हैं चीज़ों को. The following is supposed to have a great impact on the scientific methods of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. तो इनका क्या कहना था कि जब तक हमारे मन के सारे डाउट किसी भी चीज़ के बारे में दूर नहीं हो जाते तब तक कोई भी चीज़ को हमने मानना नहीं चाहिए, सच नहीं मानना चाहिए. तो सारे डाउट्स क्लियर करके फिर ही सच मानना चाहिए किसी भी बात को. तो सेकंड पर्सन कौन थे? वोल्टेयर. उनका बर्थ ईयर क्या था? 1694. एंड कब तक जिए थे वो? 1778 तक. वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज Francisco Marie Arouet. He was a French. He opined that मतलब उनका ओपिनियन था that along with the objective of truth and chronology, मतलब कितना सच है और किस साल में हुआ है कोई हिस्टोरिकल इवेंट, उसके अलावा और क्या क्या कंसिडर करना चाहिए? Considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in the historiography. तो हिस्टोग्राफी में वो बोलते थे कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, उसके अलावा हमने वहाँ का वो टाइम का ट्रेडिशंस भी स्टडी करना चाहिए. ट्रेड मतलब वो टाइम पे कौन कैसे बिजनेस करते थे लोग, वहाँ का इकोनॉमी कैसा था, और एग्रीकल्चर में क्या होता था, क्या उगाते थे, क्या खाते थे लोग, ये सब भी हमने स्टडी करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था. इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग हिस्ट्री. तो फिर क्या हुआ कि उनकी ये सोच से
ये सामने आया, ये समझ में आया कि इंसान के ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को स्टडी करना ज़रूरी है अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इसीलिए हम वोल्टेयर को क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। द थर्ड पर्सन वॉज जॉर्ज विलियम